wait करो. Okay. Good afternoon of all of you. Are you able to hear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, very well done all the students and those who were doing this effort to make the record. I know that you had to take so much of pain, but that work was very good and superb. But one thing I want कि जो क्लास में दो मॉनिटर्स कर रहे थे उसको एक बार आप लोग शॉर्ट आउट कर लीजिए. Who have not submitted till today evening, you submit it. Otherwise, I will not add your name. आपको आज anyhow complete कर देना है because today is what date? 18th and I told 15th. Clear? लोग जो क्रॉनिक डिजीज सब है एक क्लास का जो नहीं लिखता है और पता है मुझे कि उन लोगों को कैसे लिखवाना है. You have to write your answer and question in your copy. And don't make excuses that I am out of Patna, I don't have book and I don't have the copy. You purchase another copy and write it down. You knew it. लोग जानते थे पहले से ना कि कॉपी बनाना है. Right from the first day we are telling. हम लोग सब टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको कॉपी में लिखना है. This is a very lazy attitude that you all have not made your copy till now. Now, what the monitors will do, the checkers they will give me the report and then I will complete report. One, जैसे Umkar will give for 7B, then Aditi will give me for 7C. But who is working for 7A, I am not able to find out. I think Tilak को हम बोले थे. I said to Tilak, I think. Is he from 7A? Tilak Upadhyay? Tilak, I told you, okay, I'll talk to you later. लेकिन जो जो अभी सुन रहे हो वो आप लोग एक शॉर्ट आउट करके मुझे लिस्ट दे दीजिए कि कौन बच्चा कौन सा चैप्टर नहीं किया है और बस उतना आप रोल नंबर और नेम लिखिएगा और लिखिएगा कि ये चैप्टर मिसिंग है. और फॉर दैट यू जस्ट नोट डाउन कि आप लोग को चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है वो आपको पता होना चाहिए. बट स्टिल आई विल टेल यू चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, then after that 7, 10, 11, 12 and 13. These chapters you have to complete. Clear all of you? Then next coming Sunday we will have our science online test again. Then for that you will learn the which chapter is the turn for of which chapter. It is for electric charges at rest, isn't it? यही है ना. पहले से तो होते आया है सारा चैप्टर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेस्ट आप लोग प्रिपेयर करिएगा और उसी का टेस्ट हो. क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. You make up your mind that in September you are going to have your half yearly exam. वो certainly 10 marks का नहीं होगा, उससे ज्यादा का होगा और उसका पैटर्न अलग. Now, today we will talk about, we were discussing about the light chapter, isn't it? आज एक दिन आपका ये चैप्टर मैं फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद मैं वो चैप्टर आपको एक बार इलेक्ट्रिक चार्जेस फिर से क्लियर कर दूंगी so that you can revise for your online test. वैसे हम लोग sufficient revision किए हैं उस चैप्टर का. एक हम लोग sufficient रिविजन किए हैं तो 1-2 दिन आप लोग का एक क्विज करवा देंगे ताकि आप लोग को एक माइंड में आ जाए कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है उसमें. ठीक है. अब आप लोग आ जाइए. इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर हम लोग को ये डिस्कस करना था. बिफोर दैट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड मिरर. कर्व्ड मिरर का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़े. कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर यू कैन टेल, ये हम लोग पढ़ लिए थे. तो इसमें क्या था, व्हाट वाज इट? ऑल ऑफ यू पे अटेंशन एंड क्लोज योर स्क्रीन. Ronit and all, don't get disturbed. Now, we had discussed this topic, that laws of reflection by a spherical mirror.
In this, the first rule was that, let us see this. एक बार ये डायग्राम हम लोग को देखना चाहिए. क्या था कि when a ray is parallel to the principal axis, अगर कोई ray parallel move करता है principal axis के, तो after reflection it will pass from the focus. यही था ना आपका rule. क्या rule था? First rule was this, that when a ray is passing parallel to the principal axis, so after reflection it will pass from the focus. और सेकेंड कन्वेक्स के केस में हम लोग क्या बोल रहे थे? कन्वेक्स के केस में हम लोग बोल रहे थे कि when a ray is passing, the same thing is there, but the word will change for its explanation, and that is a ray which is parallel to the principal axis, we assume it will pass from the focus. Then the second rule was that when a ray is coming from the focus, then it will become parallel to the principal axis. Here also the language changes. A ray which is passing from the focus, we assume that it is passing from the focus, will become parallel to the principal axis. Then third rule was that a ray which is on the center of curvature will retrace its path, will get diverted on its same path. This was your third rule. In the same way, we will explain convex lens mirror also, that a ray which is coming, we assume that it is coming from the center of curvature, will retrace its path. Clear? This was your rule. Then how we are going to apply this rule on the when we are dealing with different position of the plane mirror, when the object is placed at different positions. ये तो हम लोग अभी पढ़ लिए हैं. अब ये आ जाइए different positions of the object to be kept on the when it is kept on the beyond the center of curvature. Where is your center of curvature? Point C, this one. It is denoted by the arrow. ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर. ये आपका C दिख रहा है. So this is your center of curvature and the object is your A and B. So what can you conclude from this? इसको explain करेंगे हम लोग laws of reflection by spherical mirror के rule पर ही. What was the rule? First rule क्या था? A ray which is parallel to the principal axis passes from the focus. Focus से pass कर रहा है. A ray which is passing from center of curvature retraces its path. देख रहे हो दोनों तरफ से arrow है. In both the direction retraces its path. But where they are meeting, यहाँ meet कहाँ कर रहा है? At a point that is A dash B dash. So that will be what? The point of formation of बोलो Image. Image. Formation of image, and that is denoted by A dash B dash. और देख रहे हो कि दो रे एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो ये नेचर किस तरह का होगा? एक्चुअल इंटरसेक्शन में कौन सा किस नेचर का इमेज? रियल. ठीक है, देख रहे हो? रियल एंड इन्वर्टेड. हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड आल्सो. डिमिनिश्ड, Real and inverted. हाँ, and diminished is also a word which explains that the image which is formed is smaller in size as compared to the object. Object साइज से छोटा इमेज बनता है, इसलिए उसको हम डिस्क्राइब करते हैं वर्ड डिमिनिश्ड. क्लियर? तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे इसको फॉर योर एग्जाम, फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम? इसको प्रिपेयर करना है, ये आपको ऊपर का सिचुएशन याद रखना है और नेचर याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, मे बी आपका ये इनकम्प्लीट डायग्राम दिया हो तो कहेगा आपको कंप्लीट करने के लिए और उसका नेचर लिखने के लिए. ये आप एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है. दूसरा हो सकता है कि आपको उसका रे डायग्राम बनाने के लिए दे दे डायरेक्ट. और तीसरा हो सकता है कि नेचर ऑफ द इमेज लिखा रहेगा और आपको सिचुएशन पूछेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ दिया, कहाँ. क्लियर? तो तीन तरह का आपका यहाँ क्वेश्चन बन सकता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम जो अभी बात बोले आपको क्लियर? Yes, ma'am. Yes.
मैम। Yes, ma'am. अच्छा, ये कौन ऐसे करके साउंड निकालता है? ये आपको हमेशा देखना है कि जब भी कोई इमेज ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बना है, ये तो आपको लर्न कर लेना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है रे डायग्राम. रे डायग्राम इज मस्ट टू बी प्रैक्टिस विथ पेंसिल ऑन योर ग्राफ कॉपी पे. आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है. ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर. ये तो आपको समझ ही गए हो, ये हम एक्सप्लेनेशन दिए हैं. ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, LF. या सारा ये जो आपको हम डायग्राम बनाए हैं, क्योंकि आपको एक बार बता चुके हैं इसलिए हम आपको थोड़ा फास्ट देख रहे हैं. ए बी आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ. AL एक रे है, A एंड L. दूसरा है रे LF, L और F. ये आपका क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, जो कि कहां से पास कर रहा है? कहां से पास कर रहा है? बोलो. LF जो रे है वो किस पोजीशन से पास कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के कौन से पोजीशन से पास कर रहा है? बोलो. टेल मी. फोकस से. फोकस. तुम लोग इतना क्यों इसको ये ले रहे हो, टफ ले रहे हो? इट इज नॉट वेरी टफ. इफ यू विल अंडरस्टैंड देन इट इज वेरी इजी. और दूसरा रे क्या है मेरा? दूसरा रे है A, C और N. ये जो रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो ये पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर है. और रिफ्लेक्ट कहां से? इट इज नॉट कमिंग क्लियर. ओके, थोड़ा इंटरनेट में दिक्कत है. हाँ, इज इट ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am. Then the reflected ray is your N, then that is NC and A. Reflected आपका NC और A. ठीक है. नेचर ऑफ इमेज हम आपको बता ही दिए हैं अभी. रियल, डिमिनिश्ड, इनवर्ट, and it is between F. और आपस में बात बंद करिए आप लोग. Don't talk in between. सिक्योरिटी का है. या कौन है ये? So don't talk and disturb the class. So here the nature of image formed in this case is real, diminished and inverted. Then after that, second situation, when the object is at the center of curvature. Object जब center of curvature पर है. Object आप देख रहे हो AB. Then again a ray which is passing parallel. The ray is AL, passing parallel to the principal axis, this principal axis, and it is getting diverted from the focus. जो रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होता है? पता है ना? फोकस. हाँ, फोकस. Focus. सेम थिंग वी आर रिपीटिंग. अब उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास कर रहा है. ठीक है, तो no, it is passing, not center, sorry, center of curvature. It is passing from focus. तो ये आपका कौन सा रूल था कि अगर कोई रे फोकस से पास करेगा तो वो क्या होगा? ये कौन सा रूल था? Becomes parallel to the principal axis. Becomes parallel to the principal axis. ये आपका सेकेंड रूल था. सेकेंड रूल. हाँ, तो ये दोनों कहाँ पर मीट कर रहा है जाकर? फिर देख रहे हो यहाँ पर A डैश पर, जहां पर हम एक डॉटेड ये से सर्कल से डिनोट किए हैं. ये दोनों रे L और A डैश, L और A डैश, और फिर उसके बाद A N रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से और ये जाकर मीट किया A डैश पर. तो अब देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट भी जस्ट इसके ऊपर है और इमेज भी उसके नीचे बना हुआ है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेचर में? The nature of the image formed is real. It is inverted Real limited and has size. and of the same size. वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी बने. ये आपका इसका नेचर हुआ. Then after that next में आ जाइए.
when the object is in between the center of curvature and focus of the mirror. ये ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है. ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस वन. ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोकस. ठीक है. देन इसके बीच में आपको ऑब्जेक्ट है ए बी. अगेन सेम थिंग, a ray which is parallel to the principal axis passes from the focus. दूसरा ray which is passing from the focus will become parallel to the principal axis and will form an image beyond center of curvature. इसमें जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमेशा बियॉन्ड बनता है. और ये नेचर कैसा होगा, इसको देखकर आप लोग बोल सकते हो. डायग्राम देखकर बताइए. Real, inverted and enlarged. Inverted and enlarged. Real, inverted and enlarged. Very easy. Real position is beyond center of curvature. Very good. अब आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको आंसर क्या करना है किस क्वेश्चन में, है ना. ओके चलो नेक्स्ट. यहां पर आप देखिए, when the object is at the focus of the mirror. जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, ये आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं दिखा रहे हैं. दोनों रे अलग अलग जाकर डाइवर्ट हो रहा है, अलग अलग पाथ में मूव कर रहा है. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, AD is an object which is kept at the focus. A ray which is parallel to the principal axis passes from the focus. दूसरा ray है which is passing from the center of curvature. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या नेचर होता है कि वो उसी पाथ में डाइवर्ट हो जाता है. लेकिन आप देख रहे हो कि ये दोनों रे क्या है, हमारे स्क्रीन पर कहीं पर भी मीट नहीं कर रहा है, लेकिन ये प्रूव्ड है. दिस इज प्रूव्ड. इस सिचुएशन में आपको थोड़ा रिलाई करना पड़ेगा जो फैक्ट दिया है उस पर. क्या फैक्ट दिया है कि रियल इमेज बन रहा है, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड इमेज एट इंफिनिटी. बहुत दूर में जहां पर कि हम स्क्रीन पर उस इमेज को नहीं ले सकते हैं, उतनी दूरी पर इसका इमेज बनेगा, लेकिन बहुत ही दूर में बनेगा. एट इंफिनिटी, उस वर्ड को बोलते हैं इंफिनिटी. और ये किस तरह का इमेज बनाएगा, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज. और ऑब्जेक्ट चूंकि छोटा है तो इमेज इसका क्या बनेगा, एनलार्ज बनेगा. लेकिन हम लोग इसको स्क्रीन पर इसको शो नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग दैट इट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. सो वी विल हैव टू रिलाई दैट इन दिस केस वी आर गेटिंग रियल इमेज. देन उसके बाद आ जाओ, when the object is in between the focus and the pole of the mirror. Object focus और pole के बीच में है. तो कैसे है, देखो AB एक ऑब्जेक्ट है जो फोकस और पोल के बीच में. इसमें भी वही रूल है, a ray which is parallel passes from the focus, और दूसरा a ray which is passing from center of curvature retraces its path. बट इसमें हम लोग assume करेंगे, we will assume that it will meet at the point A dash B dash. So there is an assumption in this case. That is why it will be a what? Virtual image. यही एक पोजीशन है आपके कन्वेक्स मिरर में जब आपको वर्चुअल इमेज मिलता है. और बाकी सारे सिचुएशंस में जब हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वी आर गेटिंग द रियल इमेज ओवर देयर, बट हियर वी आर गेटिंग द वर्चुअल इमेज ओनली इन दिस पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट. तो इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है आपको जनरली एग्जाम में कि टेल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर वी गेट वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कनकेव. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता है, पूछता है, तो आपको पोजीशन लिख देना है ऑब्जेक्ट का. क्या लिखोगे इसमें, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, focus and the pole of mirror, focus and the pole of mirror between. The object will be kept between the focus and the pole of the mirror. And one thing children, when you are drawing a ray diagram,
आप अगर एक एरो भी इसमें छोड़ोगे तो आपको मार्क्स, उस डायग्राम को आपको रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए इस डायग्राम में एरो का बहुत इंपॉर्टेंस है। एरो, पॉइंट एंड उसका रे का पोजीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो टिल हियर एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No. कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ। No, ma'am. लोग एक प्रोजेक्ट कुछ भी, जैसे कि आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर लो, जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग बनाए थे है ना, न्यूट्रिशन, आ रहा है। तो वो आप बना ले सकते हो, या फिर ये सॉइल का लेयर्स दिखा सकते हो थ्रू डायग्राम ऑल्सो, और थ्रू मेकिंग अ मॉडल एंड डिस्क्राइबिंग अबाउट इट। या फिर आप इसको एक छोटा सा बनाकर रख ही लीजिए, ठीक है, कहीं भी सेव कर लीजिए। जब हम आपको बोलेंगे कि इसको डिस्प्ले करना है तो सारे बच्चे उसको डिस्प्ले करें, ठीक है? इज इट ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. फ्रॉम ऑल द सेक्शंस, जैसा इंस्ट्रक्शन हम लोग को स्कूल के थ्रू आएगा कि प्रोजेक्ट क्या सबमिट करना है, नहीं करना है, देन वी विल, वैसे आपको हम बोले थे कि ब्लैक बोर्ड वाला बना लेना, चैप्टर से कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में बना सकते हो। एक प्रोजेक्ट को भी चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, उसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसको आप लोग ड्रॉ करके along with the explanation, verbal explanation in the class, उसके अलावा आप लोग करके अपने एक फाइल में रख लोगे, ताकि आप लोग को जब उसको सबमिट करने की का चांस आए तो आप लोग सबमिट कर सकिए, ठीक है? ड्रॉ इट फॉर फर्स्ट टर्म प्रोजेक्ट वर्क, और उसमें आपको ऑप्शन है, फर्स्ट है, दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तीसरा है हीट का कंडक्शन कन्वेक्शन, और चौथा है सॉइल से कोई लेयर्स ऑफ द सॉइल। ये चारों में से कोई भी बना सकते हैं, ओनली वन प्रोजेक्ट, एक कोई भी जो आपको इजी लगे, ठीक है? इज इट ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. और कॉपी काइंडली सब लोग टेक इट सीरियसली, ये आप लोग को कोई इसमें रियायत नहीं है, क्योंकि वी आर Okay, ma'am. रिमेनिंग एट होम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप लोग बहुत टाइम के लिए घर में रह रहे हो, इसलिए आपको कॉपी सबमिट करना ही है, बनाना ही है कॉपी। इसलिए उसमें कोई ऑब्जेक्टिव आप मत लिखिए, कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव का इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन आप ये कंफर्म करिए कि आप बुक में जो ऑब्जेक्टिव बनाए हो वो आपका सही है, ठीक है? और एक दिन मैं इसी ऑब्जेक्टिव पर और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का क्लास ले लूंगी, जिसमें आपको चेक हो जाएगा कि आप बुक में भी अगर लिखे हुए हो तो आप करेक्ट लिखे हो। क्लियर? आप बुक लेके बैठना, Okay, ma'am. Okay, ma'am. क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे सारे चैप्टर का वंस अगेन, और आपका ऑब्जेक्टिव को भी एक बार हम डिस्कस कर देंगे अलोंग विद द स्पेलिंग, सो दैट यू कैन हैव योर चेकिंग ओवर देयर। देन उसके बाद आपको एक एक्टिविटी है, इस क्या करना है, एक मिरर लेना है। कौन सा मिरर लेना है? कनकेव मिरर लेना है, और आपको उसको उसके सामने एक गोल्डन क्ले से एक कैन, मतलब ये मिरर को आपको फिक्स कर देना है एक स्टैंड पे, और उसके सामने एक लाइटेड कैंडल आपको लाना है, उसके थोड़ी दूरी पर रखना है। पुट द thick sheet of paper in front or behind the candle and adjust its position till you get a sharp image. अब आपको उस कैंडल के का इमेज, आपको अच्छा इमेज बने, आपको पोजीशन को ऊपर नीचे करना है, ठीक है? मतलब थोड़ा नजदीक ले जाओ या थोड़ा दूर करो, ऐसे एडजस्ट करके इस पोजीशन पर लाना है कि उस कैंडल के फ्लेम का इमेज आपके पेपर पर, paper will act as a what? Paper will act as a screen, वो आपका स्क्रीन होगा, ठीक है? एंड ये आप मेक श्योर करो कि द स्क्रीन इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर is not being obstructed
while reaching on the screen. Now move the candle first towards the mirror and then away from the mirror. That what I told you. You have to adjust it. Adjust करो इस तरह से. Is the image real or virtual? Is it larger compared to its flame? Record your observation for different position. And this will give you the observation what you have studied about your image position in the all the cases in the chapter just now. है ना? आप कैंडल को अगर फोकस पर रखोगे तो कहाँ जाएगा? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो कहाँ जाएगा? फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो इससे आप लोग उसको वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है? देन उसके बाद आ जाइए, एक टॉपिक है आपके पास प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मिरर्स. मिरर्स का क्या क्या प्रैक्टिकल यूज है. So we have a vast use of this concave and convex mirrors in our day-to-day life. Like first is that ENT doctors use concave mirror for as their head mirror. Why do they need the head mirror? Head mirror क्यों लोगों को चाहिए? Why do they need this head mirror? Head mirror क्यों चाहिए? Tell me. Because they have to see the different parts of the ENT doctors are what? They are just examining your eyes, nose and throat. So that is your inner part and that is a delicate and very small part which they have to examine. And to examine it, they require proper lighted position of this mirror so that they can get the reflection back. Okay. So to see this reflection, they have to put the mirror, this concave mirror on their head. Then light from a lamp is made to fall on the mirror. इस mirror पर एक lamp से light उस पर पड़ता है और उसका वो reflection उस mirror में देख पाते हैं. Gets focused onto the throat or ear of the patient. The doctor is then able to examine that part clearly. Clear? Then dentists also use concave mirrors to get a magnified image of the teeth. Teeth is also a delicate part जिसका कि आपको bones, ये socket, root और उसके nerve जहाँ पर भी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है वहां पर उसको एग्जामिन करना पड़ता है और तब फाइंड आउट करना पड़ता है कि वहां पर उसको क्या दिक्कत है. Concave mirror also serve as reflectors of light in torches. Torches में concave mirror इस तरह का काम कर सकता है. Then convex mirrors serve as a good rear view mirror in motor vehicles. All of you have seen that there is a mirror in each and every vehicle in which the drivers can see the image of a very longer distance. बहुत long distance पर भी कोई vehicle पीछे से आ रहा होगा तो वो side mirror से देखकर पहचान सकता है कि हमको किस तरफ जाना है. Where he has to go, either it has to go to left or either he has to go to right. They help the drivers to see the traffic behind them over a wide range of view. You might have seen eye specialist using a special instrument called ophthalmoscope. This is a very special instrument which is known as ophthalmoscope and it is fitted in concave mirror having a small hole near its center, and this concave mirror helps the doctors to direct a beam of light into the patient's eye and see in his or her retina clearly through the hole in the mirror. So these parts, the eyes, nose, throat and the inner part they have to examine, and they are very delicate parts. So they have to have a proper lighted area and see the broader image or the bigger image of that portion so that they can find out what is the problem the patient is suffering from. We also know that we need telescope for viewing distant heavenly object
Telescopes are made up of either convex lenses or suitably shaped curved mirrors. Of the two, telescopes made by using mirrors are better in several respects. Curved mirrors are therefore used in designing large reflector type telescopes. So, curved mirrors are used in telescope also, and according to its use, what use they have to take and which type of image they have to take from this telescope. They either use a convex lens or they can use a curved mirror of a proper shape. We need plain mirrors while dressing up, combing our hair, shaving the beard, and so on. These mirrors are also used in designing scientific meters and the periscope. The periscope is a simple device that enable us to see overhead objects that are not directly in the range of our sight. Plain mirrors are also used in designing a simple but interesting toy called kaleidoscope. So in kaleidoscope, we are keeping the plain mirror at an angle. But to make a periscope, because periscope is not straight, we cannot see it straight. We have to make a curve. उसमें curve रहता है, and it has got this particular shape, this periscope. And we can see by placing the mirrors, plain mirrors at the corner of the turning of that periscope. उसके कॉर्नर पे जहां वो टर्न किया कर रहा है, तो हम लोग ऊपर के ऑब्जेक्ट को भी उससे देख सकते हैं. मतलब जिस सरफेस पर हम लोग हैं उसके ऊपर. इसमें ये कहाँ यूज होता है? The army men and all, they use this because they have to keep the eyes all round so that they have to protect the country, or they have to see the bordering areas where anybody is not hampering their work. So this much is the fact. और उसके बाद आपके पास फिर आ जाता है कन्वेक्स मिरर का. तो ये कन्वेक्स मिरर हम लोग कल पढ़ लेंगे. वैसे आपको इसमें जनरली एक ही डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक डायग्राम क्यों दिया हुआ है. क्योंकि अगर देखो एक शॉर्टेड आउट ये भी दिया हुआ है, समरी भी दिया हुआ है कि कहीं भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मेरा इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनेगा, और वो P and F के बीच में बनेगा. ये दिस इज द सिचुएशन ऑफ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग को देख ले जा रहे हैं, क्लास खत्म हो गया. एक तरह का ही इमेज बनता है, और वो है डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड फॉर्म्ड बिटवीन P and F. सो फॉर कंफ्यूजन, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में पूछ देगा कि वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट C and F, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज बाय कन्वेक्स मिरर. तो आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना. एग्जाम में कभी कभी बच्चे इस तरह की गलती करते हैं कि वो मिरर का नेचर नहीं पढ़े और वो कनकेव मिरर के बारे में लिख के आ जाते हैं. तो आपको पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए एग्जाम में कि हमको कन्वेक्स के बारे में पूछ रहा है कि कनकेव के बारे में. अगर कन्वेक्स के बारे में पूछ रहा है तो दैट विल बी सेम फॉर इमेज फॉर्मेशन विल बी एट द सेम पोजीशन फॉर एनी केस. ठीक है, ठीक है. टुमारो आई वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे कल. ओके, एंड देन we will come back again to the electric charges. अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन होगा तो कल पुट अप करिएगा. ठीक है, ओके. Okay, ma'am. To all of you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. चैप्टर को एक बार रीड करो. थैंक यू मैम. प्रैक्टिस करोगे. प्रैक्टिस द. ओके मैम. ओके, थैंक यू. मैम कल भी मीटिंग जूम ही पे होगा. हाँ, मैम कल भी मीटिंग जूम ही से होगा. मैम कल भी मीटिंग जूम ही पे होगा. मेरा हमको उसको अभी देखना पड़ेगा, इसलिए हम जूम से कनेक्ट किए हैं. ठीक है. ओके मैम. अपग्रेडेशन के बाद तो हम ओके मैम. I'll let you know. Ma'am. Hello. Tell, क्या बात है? पीयूष, what do you want to say?
और कॉपी करेक्शन मैम। के लिए पर्सनली फोन मत किया करो, आप लोग डायरेक्टली ओके मैम। कॉपी सबमिट करना है। आज नहीं करेंगे मैम तो हम ये नहीं लिखे हैं, ये सब डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज बंद करिए आप लोग अब। इट्स हाई टाइम नाउ, यू हैव टू डू योर वर्क। वर्क तो करना ही है ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.